हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ हर्षिता एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ जिस वीडियो पर, वो है खंट वर्सेस मूसा नाम है इस वीडियो का। और इस वीडियो को बनाया है बब्बन वडाला ने। खंट जो है वो है जो उस्ताद जी हैं पंजाब म्यूज़िक इंडस्ट्री के, जो लाइव लीजेंड हैं, लीजेंड ऑफ लीजेंड्स हैं, उनका पिंड है, यू नो वेरी वेल। और जो मूसा है वो सिद्धू मूसेवाला भाई जो हैं उनका पिंड चे। तो इसलिए उन दोनों के गांव का ये नाम लिखा हुआ है और इसमें वर्सेस है ये, तो कुछ ना कुछ इन दोनों से रिलेटेड ही यहाँ बात होगी। मे बी एक दूसरे को पॉइंट आउट करके कुछ हुआ होगा या कुछ अच्छी बात में किसी चीज़ में कंपैरिजन किया होगा। वो जो भी हुआ है वो वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा। तो पहले मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, दैन वी विल डिस्कस हियर। आप लोग बताइएगा कॉमेंट्स में वीडियो कैसा लगा। बहुत ज़्यादा आप लोग इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, मुझे भी बहुत देखना था कि इस वीडियो में ऐसा क्या है जो आप लोग इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे। बल्कि मैं इस वीडियो को रिएक्ट करने में इतना ज़्यादा लेट हो गई हूँ कि मुझे इसको रिकॉर्ड करने में भी ना अभी थोड़ा सा मेरे को शर्म फील हो रही है कि आप लोग मुझसे लड़ना बैठे कि कब का वीडियो इनको दिया हुआ है और ये अब रिएक्शन हमारे लिए दे रही है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। आप लोग बहुत लवली ऑडियंस हो मेरी, मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस हियर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए गल सुनो बीबा, अरशां तो फरशां ते सिੱਟਣ ਲੱਗਿਆਂ दुनिया मिंट लाउंदी आ। नाले तेरी औकात दस्सां की आ। शहर दी हवा दा रुख वेख, कदे तू साडे बाई नूं अपना प्यो बनाया ते हुण आ सज्जरा प्राहुणा बनाई फिरदियां। कहनी आ ना हिक च वजो प्राहुणे दे, आ तेरे प्राहुणे दी हिक च वजन लगे आ। इहनूं प्राहुणा नहीं, पिंडां च भंड कहंदे आ, भंड। ते भंड दा काम आ दुनिया नूं भंडना। कदे चाचे मामिਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡੀ ਜਾਣਾ। ਮਿਰਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੜੂਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੀਝ ਨਾਲ। ਆ ਹੁਣ ਕਈ ਭੇਡਾਂ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਵਿਆਹਣ ਆਉਣਗੇ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ। ਆਜੋ ਸਾਲਿਓ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੋ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਪੱਟੂ ਪਾਪੀਆਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਲੇ ਬਣਨ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਕ ਜੱਟ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਿੰਗ ਪਰਾਉਣੇ ਵਾਲੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵਹਿਮ ਪਾ ਲਏ, ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵਹਿਮ ਪਾ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੜਬੇ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਖੰਟੇ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਖੰਟੇ ਵਾਲੇ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ 3 ਝੁੰਡੇ ਕੋਤੜੇ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ। ਹਾਰਟ ਨੂਟ 11 ਉਦੋਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਧੂਆਂ, ਬਾਈ ਲਾਰਸ ਹੋਵੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਿਆ। ਕੱਲ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪੱਟ ਹੋਣੇ, ਕੱਲ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪੱਟ ਹੋਣੇ। ਝੰਡੇ ਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੇ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਖੰਟੇ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਖੰਟੇ ਵਾਲੇ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋਇਆ। ਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਣੋਂ ਹਟਾ ਦੂ, ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣਿਆ। 3-4 ਵਾਰੀ ਜੱਟ ਬੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਆਇਆ ਜੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਗੀਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਜੇ ਛੱਡੇ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਖੰਟੇ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਖੰਟੇ ਵਾਲੇ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸੁਣ ਸੁਣ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਖੰਟੇ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਖੰਟੇ ਵਾਲੇ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋਇਆ। ਗੰਨਾ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਆਲੇ ਚੱਕ ਲਈ ਕਲਮ ਸਿਰ ਸੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੱਢੂ ਅਗਲੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਰੜਕਾਂ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਭੋਗੀ ਫੇਮ ਲੈਣ ਲਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਭੋਗੀ ਫੇਮ ਲੈਣ ਲਈ। ਭੰਡਣ ਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੁੰਦੇ
ਉਹੀ ਖੰਟੇ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਖੰਟੇ ਵਾਲੇ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਖੰਟੇ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਖੰਟੇ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ओके, तो ये था इस वीडियो में उन्होंने खंड जो उस्ताद जी का जो गांव है, बब्बू मान जी का जो गांव है, उन वहाँ के हैं वो, तो उनका कंपैरिजन जो है, मतलब एक तरीके से इन्होंने जो सॉन्ग ये बनाया है वो सिद्धू मूसेवाला जो है उनको बिल्कुल सीधा सीधा पॉइंट आउट किया है कि जो अभी 2 साल पहले ही इंडस्ट्री में जो आया है और जो हमारे बब्बू मान जी हैं, जो उनको सुन सुन के, उनके सॉन्ग्स को सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम से सॉन्ग्स बना रहे हैं। तो ये बात तो डेफिनेटली है कि वो भाई एज में इतने बड़े हैं आजकल के जो सिंगर्स हैं उनसे, तो डेफिनेटली उनको सुन सुन के ही जो न्यू सिंगर्स हैं वो भी बड़े हो रहे हैं। जो अब जितने भी सारे सिंगर्स हैं उन्होंने सारे ही पुराने सिंगर्स उनके सारे फेवरेट होंगे और उनको सुन सुन के वो लोग भी बड़े हुए होंगे। तो इस बात में कोई भी दौराए नहीं है कि उनको सुन के ही बड़े हुए हैं। ऑडियंस तो हुई है ही, लेकिन जो आज जो और एस्टेब्लिश सिंगर्स हैं इंडस्ट्री में वो लोग भी उनको ही सुन के बड़े हुए हैं। इवन कई बार उन लोगों से अगर पूछेंगे तो वो उनके फेवरेट वही होते हैं, बब्बू मान जी। तो ये बिल्कुल बात मैं भी मानती हूँ इस बात को। और सिद्धू मूसेवाला को ही उन्होंने टारगेट किया है इस सॉन्ग में, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इसमें कही, जिसमें कि इस सॉन्ग में ही उन्होंने कंपैरिजन किया कि जो मान जी हैं उनके सॉन्ग्स को आज भी रिपीट मोड पे कितनी बार सुनते हैं। न्यू सॉन्ग का बस वेट ही रहता है कि अब किस थीम पर सॉन्ग्स आने वाले हैं, क्योंकि वो खुद मान जी ने अपने कई सारे सॉन्ग्स में ये बात कही है कि मैं सब गा के छोड़ दिया है, सब कुछ गा के छोड़ दिया है, मतलब कुछ बचा ही नहीं, कंटेंट कोई थीम नहीं बची, इस तरीके से वो बोलते हैं। तो पब्लिक को भी रहता है कि अब जब कुछ बचा ही नहीं तो अब वो किस कंटेंट पे गाएंगे, किस थीम पर वो गाना गाएंगे। उनकी थीम्स का लोग वेट करते हैं, उनके सॉन्ग्स का लोग वेट करते हैं बिल्कुल। और सिद्धू मूसेवाला को सीधा सीधा उन्होंने बहुत सारी जगह पे जिस तरीके से वो सॉन्ग्स बनाते हैं उस बात को लेके उन्होंने सीधा सीधा उनको बोला है। तो इस टाइप पर था ये वीडियो। तो बिल्कुल मुझे तो यही चीज़ समझ में आई। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी। ये तो जो ये इस टाइप से जो आप लोग वीडियोस बनाते हैं, जो इस तरीके के जो आर्टिस्ट हैं वो जो वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि बब्बन जी ने ये वीडियो बनाया है, तो ये जब इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं तो बिल्कुल भी डरते नहीं है। ये चीज़ बहुत अप्रिशिएट करने वाली है। और भी मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनाए, रिएक्ट किए हैं, जिनमें कि जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने बिल्कुल खुल के बोला है, उनको बिल्कुल भी डर नहीं है कि अगर ये वीडियोस, डेफिनेटली यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर कोई ही देखता है इन चीज़ों को, तो उन लोगों के फैंस और वो लोग तक भी ये वीडियोस कई बार पहुंच जाती होंगी। तो बिल्कुल डरते नहीं है ये लोग बनाने में, क्रिएट करने में कंटेंट को, बिल्कुल ही निडर होके वीडियोस को बनाते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये बात बिल्कुल इस वीडियो में साफ देखने को मिल रही थी कि एक को वो जिनके फ़ैन हैं वो उनके बारे में एक पॉजिटिव बातें वहाँ कर रहे हैं पूरी, और एक जो हैं जिनसे उनका वो कंपैरिजन कर रहे हैं मूसेवाला से, तो उनके बारे में उन्होंने वो एक तरीके से थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में थोड़ा सा उन्होंने उसमें बात की। तो उस चीज़ पर था ये वीडियो। बिल्कुल मुझे अब पता चला कि आप लोग क्यों इसको इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे। बाकी में बहुत चीज़ें थी, दोनों की पर्सनालिटी को जानने के लिए इसमें जो चीज़ें थी वो इसमें मिली। तो आप लोग बताइएगा कि मेरा रिएक्शन कैसा लगा। और मैं तो मूसेवाला भाई और बब्बू मान जी दोनों की वीडियोस पर इक्वली ही रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ। और अगर मैं अपने पर्सनल रिव्यू की बात करूँ तो ये सिर्फ मेरा पर्सनल रिव्यू है। मे बी किसी को ये बुरा भी लग सकता है और कुछ लोगों को ये बहुत अच्छा भी लगेगा, तो लेकिन ये मेरा पर्सनल रिव्यू है बिल्कुल। और मैं अपना पर्सनल रिव्यू ऐड तो ज़रूर ही करूँगी। तो इसमें मैं बस यही कहूँगी कि अगर मुझे इन दोनों आर्टिस्ट में से एक को चूज़ करना हो, जैसे कि कौन सा बेस्ट है कौन सा ये, मैं बेस्ट की कोई बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि सबका अपना टेस्ट होता है कि वो किसको सुनना पसंद करता है। क्योंकि सिंगर जो है वो अपनी वॉइस की वजह से लोगों के दिल में उतरता है,
ठीक है, अपने उस हुनर की वजह से वो दिल में उतरता है। तो मैं अगर इसमें कंपैरिजन करूँ तो मैं इसमें मान जी की वीडियोस को ज़्यादा प्रेफर करना पसंद करूँगी, सुनना पसंद करूँगी। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि जो मान जी जो हैं वो बहुत ही डिफरेंट कंटेंट पे गाते हैं। उन्होंने इतने सारे वीडियोस के सॉन्ग्स पर गाने गाए हैं, मतलब इतने सारे अलग अलग तरीके की वीडियोस पर सॉन्ग्स गाए हैं उन्होंने। ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों पर उन्होंने सॉन्ग्स बनाए हैं। उन्होंने न जाने कितने अनगिनत तरीक़ों की कंटेंट पे गाने बनाए हैं, इसलिए मैं उनकी वीडियोस को पसंद करती हूँ। और सिद्धू मूसेवाला जो है उनकी वीडियोस में मैं कुछ हैं, कपल ऑफ सॉन्ग्स हैं उनके जो कि मुझे बहुत पसंद आते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो उनके सॉन्ग्स हैं, उनके जो ऑलमोस्ट सॉन्ग्स होते हैं वो हमेशा अपने उन सॉन्ग्स में एक तो हेटर्स के लिए वो उसमें बोलते हैं कि कुछ भी उनके लिए हेटर्स के लिए होता है उनका सॉन्ग। और उनके पूरे सॉन्ग्स में एक मैसेज जो है वो मिसिंग होता है। मतलब मैं कुछ जो मेरे फेवरेट सॉन्ग्स हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, उसके अलग जो उनके बहुत सारे सॉन्ग्स हैं उनमें जो मैसेज होना चाहिए एक सॉन्ग में, तो उनका वो थीम जो है वो मैसेज जो है वो मिसिंग रहता है। और एक ही थीम लगता है उनके सारे सॉन्ग्स में कि सिर्फ वो हेटर्स को ही कुछ रिप्लाई कर रहे हैं, हेटर्स को ही वो कह रहे हैं। तो थीम्स थोड़ा सा चेंज होना चाहिए कि कभी आपने इस पे गा दिया, कभी आपने उस पे गा दिया, इस तरीके से। और इवन वो तो खुद ही अपना लिरिक्स खुद ही लिखते हैं, दोनों ही खुद ही लिखते हैं। तो उनको ऐसे सॉन्ग्स पे भी लिखना चाहिए जो कि थीम्स वो अलग अलग तरीके की हों। तो ये चीज़ मुझे उनके सॉन्ग्स में थोड़ी सी मिसिंग लगती है। तो ये था मेरा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रिव्यू। मे बी किसी को शायद ना अच्छा लगे, लेकिन पर्सनल रिव्यू देने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और कॉमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा जो भी आपको फील होता है इस चीज़ के लिए। लड़ना भी चाहते हैं अगर इस बात को लेके तो कमेंट्स में आ जाइएगा बिल्कुल। चाहे तो इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं आप लड़ने के लिए इस बात को लेके कि आप ऐसा बोली हैं। तो चलिए, अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।